करने लगा था। तो हमने क्या बताया था कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में अंगूठे को रखना है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या आपका चारों उंगली को रखना है, ठीक है। फोर फिंगर रिप्रेजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट in case of current element, or in case of charge the velocity vector is represented by the thumb. The direction of thumb represents the direction of velocity of positive charge particle or the direction of current element. So direction of current element, a direction of current or velocity, because the flow of positive charge direction represents the direction of current. So in case of current in any wire when flow, then your thumb should be directed toward the direction of current. Or if any charge particle is moving, then the velocity direction represented by the thumb direction. And the fourth finger represent the direction of magnetic field. So in this scenario, when we put four finger into the plane, because cross represent the magnetic field direction into the plane, and the direction of thumb represent the direction of velocity, then the palm direction represent the direction of force. So when the charge particle enter in the magnetic field, then one force act at the charge particle towards this direction. Therefore, this slowly, because force upward, slowly move, slowly move, slowly move, slowly move, this direction. But when this positive charge particle throw from here, velocity vector is this. So velocity vector is this, and magnetic field into the plane. When the charge particle move from here to here straight, because no magnetic field is here. Because no magnetic field is here. When the charge particle enter in the magnetic field, then a force exerted. In which direction force exerted? The thumb represent the velocity vector and the forefinger represent the magnetic field. Then this direction force exerted. This direction. Then here, then force towards this direction. Slowly. This direction. So if the direction of projection change, then the direction of deflection change. And the direction of force change. This scenario occurs in the magnetic field, but in electric field, in both cases, in the same direction. If the direction of the projection of the charge changes, then the direction of reflection doesn't change in case of electric field. But in magnetic field, if the direction of projection changes, then direction of reflection changes. So that occurs in the magnetic field. ठीक है, यहाँ तक बोले थे। इसके बाद क्या हम बताए थे बउआ? फिर उसके बाद लिखाए थे वेक्टर वाला, जो मॉड एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन एंड ईटा। अच्छा, हमने बताया था। तो आप इसको ऐसे करके ना, किसी बच्चे को अगर समझाना होगा तो आप कैसे बताओगे? किसी बच्चे को समझाना होगा कि भाई पनीर की सब्जी कैसे बनती है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि भाई पनीर लाएंगे, जो भी है प्याज लाना होगा, टमाटर लाना होगा, जो भी देख बनाती होगी, ये सब मसाला, पनीर मसाला लाएंगे, इतना देर बॉयल करेंगे, इतना देर ये करेंगे, जो भी है, इतना तेल डालेंगे, घी डालेंगे, डालडा जो भी डालना होगा, जिसको डालेगा, ऐसे ऐसे भूंजेगा, ऐसे ऐसे बना देंगे। तो वैसे ही आपको मान ली है तो भाई पहला टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन बीएचएम बता दिए। सेकेंड केस में हमने क्या किया भाई? हमने सेकेंड में क्या किया, हमको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टिंग्विश करना होगा, तो हम चार्ज का हेल्प लेकर डिस्टिंग्विश कर लेंगे। ये सेकेंड टॉपिक अभी तक में पढ़े। थर्ड टॉपिक क्या है? तो आप कहेंगे कि भाई अब उसके बाद हम सर एक एक और फार्मूला तरह पढ़े। से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना? क्या चीज बोली बउआ? एक और तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना ये दोनों हाँ के कर बीच में? सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे थर्ड टॉपिक के बाद किए, तो आपको ये बोलना चाहिए कि उसके बाद हमने पहली बार इस चैप्टर में एक फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ा। वो किस लिए पढ़ा भाई? हाँ, तो जैसे आपने बोली क्या कि एफ इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट है, फोर्स इक्वल टू क्यू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्यू भी क्रॉस बी पढ़े। तो आपको सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ा, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो इसके बारे में क्या बता सकती है, एक बार बताएगी कुछ भी चीज? इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपने हटाकर बोली क्यू भी साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर एन कैप दिए, यूनिट वेक्टर क्यू भी क्रॉस प्रोडक्ट जब हटाते हैं तो साइन थीटा आता है, तो क्यू भी साइन थीटा। हाँ बताओ तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे पाएगी बुआ?
सर अगर चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, मतलब चार्ज पार्टिकल अगर प्रोजेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो हम्म। फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो इस फॉर्मूले से निकलता है। इसमें हाँ इसका एंगल कुछ। मतलब है, हाँ इसका मतलब आपका ये कहना है कि कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। उस फोर्स का वैल्यू जो होगा वो क्यू भी क्रॉस भी होगा, और जिसको क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्यू भी साइन थीटा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको ऐसे बोलना चाहिए कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स का वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चार्ज इज 2 कूलम और चार्ज इज 4 कूलम और चार्ज इज 10 कूलम। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द force, the magnitude of the force depends on the magnitude of the charge particle. The velocity of the charge particle, what is the velocity of charge is 1 meter per second, 100 meter per second, 1000 meter per second, or more, anything. Then the velocity of the charge particle and the magnitude of the magnetic field, magnetic flux density or magnetic induction vector. And also what is the angle between, the velocity vector and the b magnetic induction vector. That means the magnitude of the force, depends on the magnitude of the charge, velocity of the charge, the strength of magnetic induction vector, and also the angle between the velocity vector and the magnetic field vector. ठीक है, इसके बाद वो बताएगी। सर इसके इसके बाद बाद हम लोग थीटा को अगर चेंज कर करके लिखे, अगर थीटा मतलब अगर एंगल जो है वी और बी के बीच में, हाँ यानी वी और बी के बीच में जो एंगल है उसको अगर हाँ थीटा, यानी थीटा को अगर जीरो लिए तो हाँ, यानी एफ ये का जो साइन वैल्यू थीटा क्या में, आएगा? हाँ अगर थीटा जीरो होगा तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो होगा। इसका मतलब हाँ, इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ बउआ? मतलब सर अगर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है हम्म। वो यानी कि अगर, वेलोसिटी वेक्टर जो है, यानी जो डायरेक्शन ऑफ चार्ज की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, सपोज मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और चार्ज पार्टिकल का भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब आपको ऐसे एकदम एकदम भाई मैथमेटिकल फॉर्मेट में टू द पॉइंट, कि इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल का और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है। इसका मतलब ये कहना है कि एकदम सिंपल गवार की भाषा में, जिसको एकदम देहाती भाषा में कहते हैं लोग, जहां एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होता है कि भाई चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेड है। तो इसका मतलब है कि भाई वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री का है। इसका मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू ईच अदर है। तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हुआ, इसलिए साइन 0 0 होता है, इसलिए फोर्थ। इसका मतलब आपको एकदम क्लियर करना चाहिए कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंकेंगे तो उस पर फोर्स का वैल्यू 0 लगेगा। किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंकेंगे तो फोर्स का वैल्यू 0 लगेगा। बिल्कुल सही है। सेकंड केस में हमने कितना वैल्यू लिया था बुआ? पाई का लिया था। फर्स्ट केस में थीटा 0, सेकंड में पाई। हाँ, तो इसका मतलब पाई के केस में क्या है, पैरेलल की जगह एंटी पैरेलल है। तो भी क्या आया था बुआ? फोर्स का वैल्यू 0 आया था। तो भी फोर्स का जीरो वैल्यू क्या ही आया था? आया। 0 था। ठीक ठीक है। तो 0 हुआ तो भी 0, पाई हुआ तो। इसका मतलब एकदम क्लियर क्रिस्टल है बुआ कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थ्रो करेंगे या एंटी पैरेलल, दोनों सिचुएशन में उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे, मूविंग चार्ज पार्टिकल, गौर से समझिएगा, क्योंकि फोर्स कब कब 0 होगा बुआ? फोर्स जब थीटा 0 होगा या थीटा पाई होगा, मतलब जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल चले चाहे एंटी पैरेलल चले, या तो चार्ज स्टैटिक हो,
जब चार्ज की वेलोसिटी जीरो हो, तो ये तीनों केस में फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड हमेशा फोर्स, हमेशा का मतलब कि हमेशा मूविंग चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट करेगा? नहीं। अगर हम लोग पैरेलल या एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को कितनी भी वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, क्योंकि थीटा पे जीरो या थीटा 180 के केस में फोर्स का वैल्यू जीरो आता है। फोर्स जीरो का मतलब ये नहीं है बाबा कि चार्ज पार्टिकल रुक जाएगा। चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब ये है कि जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल जा रहा था, विदाउट इधर उधर डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकलते हुए चला जाएगा बउआ। हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टेड एक छोटा सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, हम लोग आगे देखेंगे, है ना पूरा। तो ये तो हो गया बउआ कि थीटा जीरो है, थीटा पाई है, या वेलोसिटी जीरो है, ये तीन केस में फोर्स का वैल्यू जीरो होता है। फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा बउआ? सर जब थीटा पाई बाई टू है तो हाँ 90 डिग्री, चूंकि साइन थीटा का 95 मैक्सिमम वैल्यू, वन। हाँ हाँ साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 पे एक होता है। तो उस कंडीशन में फोर्स मैक्सिमम जो होगा क्यू वी बी के इक्वल होगा, क्यू वी बी के इक्वल। ठीक है, यहाँ बताए थे, इसके आगे क्या बताए थे? क्यू वी बी के इक्वल हुआ, तो यहाँ से हम लोग निकाले जो बी है, यानी जो हम लोग का हाँ मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर था, उसका हाँ हाँ वैल्यू हाँ आया एफ मैक्स बाई क्यू वी। हाँ, ठीक है स्मार्टली, गुड, हाँ हाँ अब अगर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है और चार्ज हाँ हाँ 1 कूलम है, तो बी हाँ जो हाँ है वो एफ मैक्स के बराबर होगा, इससे ये पता चला। हाँ, एफ इक्वल टू क्यू भी था, क्यू भी था। वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, चार्ज 1 कूलम है, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स इन ये डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन फैक्टर वो एफ मैक्सिमम के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे बउआ? के बाद हम लोग आइडियल कैसे बोले, हाँ नहीं, इसको ऐसे बोलिएगा सर जी कि हम लोग एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिए थे, क्योंकि बायो और समझ लो जस्ट इसके बाद स्टार्ट करेंगे वो इसी करंट एलिमेंट के लिए, इसलिए पहले इंट्रोडक्शन आपको करंट एलिमेंट का दिया गया। आई क्या, डीएल लेंथ, बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा, जैसे एक बड़ा सा वायर है बुआ, उसका सबसे छोटा टुकड़ा क्या हो सकता है? सबसे छोटा टुकड़ा उसका क्या होगा? वही टुकड़ा है बुआ। कैसे डिफ्रेंसिएशन करती हो कि भाई डिफ्रेंसिएशन किसी चीज का सबसे छोटा टुकड़ा, ठीक है, क्या हो सकता है? तो वैसे ही कोई वायर का सबसे छोटा टुकड़ा क्या है? तो वो डीएल लेंथ का है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा, तो आई डीएल एक करंट एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमने ये देखा कि किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल पे किसी मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। क्या हमेशा फोर्स एग्जर्ट करेगा? नहीं। अगर चार्ज स्टैटिक है फोर्स नहीं लगाएगा। अगर चार्ज पैरेलल या एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में, चार्ज का पैरेलल एंटी पैरेलल का मतलब जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा या अपोजिट होगा, तब फोर्स नहीं लगा पाता है मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे। अदरवाइज और सारे केसेस में फोर्स लगाता है, मूविंग चार्ज पे, स्टैटिक चार्ज पे कभी नहीं लगाता है। ठीक है, तो अब कहेंगे कि इसका मतलब अब जो हमने नेक्स्ट किया है कि हम एक करंट एलिमेंट का, क्योंकि वह एक वायर का एकदम छोटा सा टुकड़ा का क्या बिहेवियर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम एक छोटे से टुकड़े का बिहेवियर समझ जाएंगे, तो कितना भी बड़ा क्यों ना रहे, इनफाइनाइट लेंथ का क्यों ना करंट एलिमेंट, करंट का लेंथ, वायर का लेंथ रहे, वो बिहेवियर सेम होगा बुआ। तो इसी बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले एक करंट एलिमेंट लिए, एक छोटा सा हमने वायर का टुकड़ा लिया जिसमें हमने आई करंट फ्लो करवाया, तो इसे हमने नाम दिया करंट एलिमेंट। तो अब ये देख रहे हैं कि एक करंट एलिमेंट का एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या बिहेवियर हो सकता है ना, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द, है ना, एक करंट एलिमेंट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया बउआ? हमने आपको बताया कि देखो हमने एक दो लाइन में लिखा था कि आइडियल जो है वो क्या होता है बउआ? क्यू भी के इक्वल होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि आइडियल, आइडियल जो है, इसको आई को हमने बोला था कि चार्ज अपॉन टाइम होता है, और ये डीएल जो है, डीएल है लेंथ अपॉन टाइम, क्या होता है? वेलोसिटी है। तो जो आइडियल एलिमेंट है वो क्यू भी के इक्वल है। तो जो क्यू भी जैसा बिहेव करता है चार्ज इनटू वेलोसिटी, सेम बिहेवियर होता है आइडियल करंट
एलिमेंट डीएल लेंथ स्मॉल एंड आई करंट उसमें फ्लो कर रहा है, ये दोनों का प्रोडक्ट चार्ज इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। तब हमने कहा कि अगर ये होता है तो हमने ये पढ़ा अभी तक में कि फोर्स जो है एफ इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी है, तो हमने कहा कि क्यू भी के जगह पे आप क्या कर दो आइडियल कर दो, तो आइडियल क्रॉस बी, ठीक है। लेंथ भी क्या है, एक स्मॉल लेंथ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है दिया, तो जैसे क्यू भी क्रॉस बी को क्यू भी साइन थीटा किए, वैसे ही स्मॉल करंट एलिमेंट को हमने आइडियल भी साइन थीटा किया, सेम हुआ आइडियल भी सेम। और सेम हमने आपको कहा कि अगर मान लो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एक करंट एक वायर है बउआ, एक वायर है जिसमें आपका करंट आई फ्लो हो रहा है, तो क्या हो गया बउआ, ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के बीच का क्या है, एंगल क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। क्या है, करंट एलिमेंट जो डीएल लेंथ है उसका और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री है, तो साइन 0, तो यहाँ पे फोर्स 0 होगा। फिर सेम बउआ अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और आइडियल ऐसे है अपोजिट, तो फिर साइन पाई होगा, यहाँ पे भी फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी फोर्स 0 होगा। तो इस केस में भी हमने आपको बताया कि देखो भाई फोर्स का वैल्यू जो है अगर आपका थीटा 0 होगा, थीटा पाई होगा, इस केस में भी आपका क्या होगा 0 होगा। अगर मैक्सिमम कब होगा बउआ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और आइडियल एलिमेंट के बीच में 90 डिग्री है, जिसको π/2 बोलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो आइडियल बी के बराबर होगा। और यहाँ से फिर बी का हमने एक नया दिया कि फोर्स जो होता है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है बी का वैल्यू वो एफ अपॉन आइडियल करंट एलिमेंट, ठीक है। तो यहां से भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको याद रखना है कि अगर कोई भी करंट एलिमेंट है, कोई भी करंट एलिमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, उस करंट एलिमेंट पे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा, अदरवाइज और हर एक केसेस में लगाएगा बुआ, कुछ भी थीटा होगा, ठीक है, ये करंट एलिमेंट है, ये बी है, कुछ भी थीटा होगा 0 और 180 को छोड़कर फोर्स लगाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट पे फोर्स लगाएगा, ठीक है बुआ, है ना। हाँ सर। फिर हाँ, फिर लास्ट क्लास में जो हमने और एक लास्ट लाइन लिखा था वो उसमें हमने जैसे हमने बोला था कि एफ इक्वल टू हाँ क्यू ही होता है, वैसे एफ इक्वल टू एम बी, एम को हमने यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ कहा था, जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे होता है, वैसे हमने एम को क्या कहा था, पोल स्ट्रेंथ कहा था, है ना, मैग्नेटिक पोल। हालांकि मैग्नेटिक में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, चार्ज में क्या है बउआ, जैसे लड़का लड़की अलग है बउआ, लड़की अलग है लड़का अलग होता है, तो कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में मोनोपोल है, लड़की अलग है लड़का अलग